Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 3 and the name of our unit is State and Government. My dear students, today I am going to deliver its third lecture, and let's start it with an activity because today we are going to learn about the rights of a citizen under the Constitution of 1973. So my dear students, let's quickly start the activity. You need a pen and a paper and rights I enjoy daily. तो अब आपको क्या चीज देखनी है कि डेली बेसिस पे जो राइट्स आप एंजॉय करते हैं, जैसे कि क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड डिफरेंट राइट्स, यानी कि मुख्तलिफ हकूक हैं आपके, जो कि आप डेली बेसिस पे आपको वो तमाम चीजें मैसर हैं और आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं. तो जल्दी से आपने एटलीस्ट 5 ऑफ योर राइट्स राइट डाउन ऑन द पेपर. क्विकली डू इट. आई होप एवरीबडी हैज डन इट. सो कौन कौन से राइट्स आपने लिखे हैं, जल्दी से जरा वीडियो को पॉज करें और लाउडली पढ़कर बताएं. वेरी गुड. सो आप बहुत सारे राइट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये राइट्स आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं. सो व्हाट आर राइट्स? बेसिकली राइट्स क्या होते हैं? द थिंग्स दैट यू मस्ट हैव आर द राइट्स. So what are your basic rights? आपके basic rights हैं education, healthcare facilities, security, electricity, clean water, sanitation. These all are some basic rights, and freedom of expression. इसके अलावा right to live. These are some very basic human rights that every human being must have. Okay, how government is responsible to fulfill your rights? अब जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपके राइट्स फुलफिल करने के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है? Because we are the citizens of Pakistan and the government is running the country, so it is their responsibility to provide all the citizens with the basic human rights. Okay, so my dear students, let's quickly have a look at the Islamic perspective. So Allah says in Quran, and in their wealth there is acknowledged right for the needy and destitute. So my dear students, Allah ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि आपके रिस्क में जो आपको अल्लाह ताला ने फराहम किया है उसके अंदर ज़रूरतमंद लोगों का एक हिस्सा है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखें. And again Allah says in Quran, indeed the noblest among you before God are the most heedful of you. Okay, my dear students, now let's start the reading. I request you all to please open page number 36 and 37 in your social 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Rights and responsibilities of a citizen by Constitution of Pakistan. So आइन के तहत जो आपके rights हैं आज हम उनको discuss करेंगे. Only rights. The 1973 Constitution of Pakistan includes the rights of citizens of Pakistan. They are known as fundamental rights. The state of Pakistan cannot deprive its citizens of these rights. Neither a law can be made against these basic human rights. So, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो तमाम अपने शहरियों को जो है उन राइट्स उनको फराहम करे और उनको प्रोटेक्ट करे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे आइन के अंदर लिखे गए हैं. इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है न किसी भी शहरी को इन राइट्स से महरूम नहीं कर सकती, ना ही वो कोई ऐसा लॉ पास कर सकती है कि वो इन राइट्स से शहरियों को महरूम रखे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट आर दीज राइट्स? लेट्स हैव अ लुक. राइट्स. The state is responsible for the fulfillment of the rights defined by the Constitution. Some fundamental rights are as follows. Right to life, यानी कि जिंदा रहने का हक. All citizens are equal and there shall be no discrimination based on gender, caste and creed. जात पात के ऊपर किसी को भी जो है उसके अंदर तफरीक नहीं की जाएगी. Freedom to profess religion freely and to manage religious institutions in country. यानी कि आपको अपना रिलीजन या अपना मजहब जो है वो फ्रीली प्रैक्टिस करने की इजाजत है. फ्रीडम ऑफ स्पीच फॉर ऑल सिटीजन्स, तमाम लोग जो है अपनी राय का आज़ादी से इजहार कर सकते हैं. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 5 to 16 बाय द गवर्नमेंट. 5 साल से 16 साल तक की उम्र के लिए बेसिक एजुकेशन जो है वो तमाम बच्चों के लिए कंपल्सरी है और फ्री भी होगी. All citizens have the right to preserve their particular language and culture. तमाम लोग जो हैं वो अपने कल्चर की हिफाजत भी कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. Slavery, forced labor is prohibited and no child under the age of 14 years can be employed in factories and mines. 14 साल से कम बच्चों को जो है उनसे काम नहीं करवाया जाएगा. नो लेबर फॉर द एज ऑफ 14.
और इसके अलावा किसी को भी जबरदस्ती या जबरी काम जो है उनसे नहीं करवा सकते, ना उनको कैद में रख सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एंटरिंग पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस हैं उसके ऊपर किसी को भी जाने से नहीं रोका जा सकता। सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट और डिटेन्ड इलीगली, तमाम लोगों को ये सिक्योरिटी हासिल है कि उनको इलीगली ना पकड़ा जा सकता है ना कैद किया जा सकता है। राइट ऑफ फेयर ट्रायल, और अगर किसी के ऊपर कोई इल्जाम है तो उसको फेयर ट्रायल का हक हासिल है। ओके, देयर शैल बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिव्यूइंग पनिशमेंट, और आपको रिव्यू हासिल है कि आप पनिशमेंट के लिए। देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, तमाम शहरियों के लिए इजाजत है कि वो आजादी से ट्रेड, बिजनेस और कोई भी जो प्रोफेशन है उसको इख्तियार कर सकते हैं, बट दे ऑल शुड बी लीगल। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि तमाम लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ होगा। ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, तमाम लोग जो हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो एक्सेस कर सके जितनी भी पब्लिक मैटर्स की इंफॉर्मेशन है उस तक। राइट टू वोट, तमाम लोगों के पास वोट करने का इख्तियार हासिल है। राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड सपोर्ट एनी पोलिटिकल पार्टी, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने का इख्तियार रखते हैं अपनी मर्जी की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पाकिस्तान के शहरियों के हकूक हैं जो कि उनको पाकिस्तान के आइन ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने फराहम किए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली लुक एट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द राइट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, एवरी सिटीजन इज granted fundamental rights. The state of Pakistan cannot deprive its citizens of these rights. Neither a law can be made against these basic human rights. So my dear students, these were the important points. Now you will note down your homework. For homework you will do research and analysis number 3, और इसमें आप क्या करेंगे? The right of one person is the responsibility of the other. Analyze how the rights and responsibilities are interlinked. Justify your findings through examples. So my dear students, previous classes में भी आप ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर आपके कुछ rights हैं तो आज जो हमने rights पढ़े हैं, इसी तरह इन्हीं राइट्स के अगेंस्ट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, क्योंकि राइट्स, हकूक और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां जो हैं ये हमेशा इंटरलिंक्ड होती हैं। यानी कि अगर आपके पास वोट करने का हक हासिल है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे इंसान को इलेक्ट करें जो कि एक जिम्मेदार शख्स हो और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो इस तरह से राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इंटरलिंक्ड। किस तरह से इंटरलिंक्ड है? सो यू हैव टू रिसर्च फॉर दैट. So in the next lecture, students will study the responsibilities of a citizen according to the Constitution of Pakistan. Until then, my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.